ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ହୁଁ ସବମିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏବେ ସବମିଟ କରିଛ ନା ନାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ? ହଁ କରା ହେଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଯାଇକି ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯଦି କରାହେଇଛି ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାପରେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୁନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତ ସେଇଟା ହଁ ଏଇ ଜୁନ ର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେନି କି ସେଟା ଡିସେମ୍ବରକୁ ଦବ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାଟା। ଡିସେମ୍ବରକୁ ଦେଇ ହବ ତ ସାର୍? ହଁ 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 କାହିଁକି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପୁଣି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଇଦବ ପୁଣି ତାର ପରୀକ୍ଷାଟା ଜୁନକୁ ଦେଇଦବ ସରିଯିବ ଆଉ। ହଁ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେଲି ସାର୍। ହଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଦିଅ ଆଉ କିଛି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଥିଲା। ହଁ କହୁନ। ଯେତେ ଜଣ ଅଛ ଓଡିଆରେ କନଭରସେସନ କଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ କାହାର? ନାଇଁ ସାର୍ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିଲା ହୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଅପ୍ ଡାଉନ ହଉଥିଲା ମୁଁ କିଛି ଭଏସ ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲି। ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ତମେ କଣ ପଢିଛ କୁହ? ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ପଢିଛ ନା ପଢିନ? ନାଇଁ ସାର୍ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ବାସ ଦେଖିଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରିଲିନି ପଢିକି। ହୁଁ କଣ ପଢିଛ କୁହ ଆଗେ? ଯାହା ପଢିଛ ସେତିକି କୁହ ତାପରେ ତା ଜାଗାରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବୁଝିବା ଜିନିଷ ସେ ଜାଗାରେ କହିଦେବି କୁହ। ମହାକାବ୍ୟଟା ଶୁଣିଛ? ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ମହାକାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ମହାକାବ୍ୟରେ କଣ କଣ ଥାଏ? ନାଇଁ ସାର୍ ନୋ ଆଇଡିଆ। ମହାକାବ୍ୟ ନ ଶୁଣିକି ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିବ? ପଢୁଛି ମହାକାବ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ରାଜବଂଶର କଥା ରହିଥିବ ସେଥିରେ ଜଣକ ନାୟକ ଯଦିଓ ବି ରହିଥିବ ସେଥିରେ ଅନେକ ପାତ୍ର ରହିଥିବେ ହେଲା ଅନେକ ଆସିବେ ସେଥିରେ ଯେମିତି ଧର ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟ ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟରେ ଦିଲୀପ ସୁଦକ୍ଷିଣା ବଶିଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟଣା ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ପାତ୍ର ସେଠି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆସିବା କଥା ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଝି ହଉଛି? ସୀତା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଅଛନ୍ତି ଲବ ଅଛନ୍ତି କୁଶ ଅଛନ୍ତି ରାବଣ ହଁ ସବୁ ଯାକ ସେଇଥିରେ ଆସିବେ ପୁରା ରାମଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏ ସବୁ ଏମିତି କି ସୁରଭି ଗାଈ କଥା ଆସିଛି ସବୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତା ଭିତରେ ଆସିଛି ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ମହାକାବ୍ୟରେ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ରହିଛି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରେ ତାହା ରହିବ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟର ନାମକରଣର ଲୋକ ବୁଝି ମହାକାବ୍ୟର ଖଣ୍ଡିଆ ଅଂଶକୁ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ କୁହାଯିବ ଏମିତି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି ସେ କଣ ହଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ହିଁ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବ ବା ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାର ତାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ବୋଲିକିରି କହୁ। ଯେମିତି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ମେଘଦୂତର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ, ସେଥିରେ ଜଣେ ଦି ଜଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଯକ୍ଷ ଅଛି, ମେଘଦୂତ ଅଛି, ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ତା ଦେହରେ? नहीं जक्ष जखनी और मेघ। ଯକ୍ଷିଣୀ ଯକ୍ଷିଣୀ ସେଠି ଅଛି କି? ଯକ୍ଷିଣୀ କଥାଟା କେବଳ କୁହାଯାଇଛି, ଯକ୍ଷିଣୀ କିଛି କହୁନାହିଁ। ବୁଝିହଉଛି? ମେଘ ବି କିଛି କହୁନାହିଁ, କେବଳ ଯକ୍ଷ କହିପାରିଛି। ବୁଝିହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏକଦେଶୀ ଅଂଶକୁ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କରେ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆକାରରେ ନିଆଯାଏ, ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଦୁଇ ଜାଗାରେ କି ମହାକାବ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ମହାକାବ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଥିବ, ବୃହତ୍ ଆକାରକ ହେଇଥିବ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତା ଭିତରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରେ ଅନେକ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ଚାଲିବ। ସେଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଉ କିଛି? धन्यवाद सर। ଆଉ କାହାର କିଛି ଯଦି ପଚାରିବାର ଅଛି? सर ମୁଁ ପଚାରିକି କହିବ ସମସ୍ତେ। ହଁ କୁହ। ଗୋଟେ ଆମର ହ୍ୟାଲୋ ମହାକାବ୍ୟ ହଉ କି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଯଦି ପଚାରିବ କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମହାକାବ୍ୟ ହ୍ୟାଲୋ ତାହେଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଯୋଉ ଶୁଣା ତମ କଥା। ହ୍ୟାଲୋ ତମ କଥାଟା କ୍ଲିଅର ଶୁଣା ଯାଉନି, ଖଣ୍ଡିତ ଆକାରରେ ଆସୁଛି, କଟି କଟି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ଭଲ ନେଟୱାର୍କ ଥିବା ଜାଗାରେ ରହିକି ପଚାରିଲେ ସୁବିଧା। सर ଏବେ ଭଏସ ଆସୁଛି କ୍ଲିୟର? ହଁ ଏବେ ଆସୁଛି। सर पचारुଥିଲି ମହାକାବ୍ୟରେ ଯୋଉ क्वेश्चन ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା କି ମହାକାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଯୋଉ ବିଷୟର ଅଛି ରଘୁବଂଶ ଯେତେକ ମହାକାବ୍ୟ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ପଣୀ କରିକି ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ କି? ନା ପ୍ରଥମେ ଆଜି ମହାକାବ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ, ମହାକାବ୍ୟରେ କଣ କଣ ଥାଏ, ତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ସେ ପୁରାଟା ଆଗେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଆକାରରେ ତମେ ଦେଖୁଛ ମହାକାବ୍ୟକୁ କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ମାର୍କକୁ ଦେଖିକରି ଉତ୍ତରଟା ତମେ ଲେଖିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଲେଖୁଛ ଖାତାରେ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ତମର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ହିନ୍ଦୀରେ ଥିବ। ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ, ଶ୍ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କୋଟ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ କୋଟ କରିବାର ଅଛି। ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ କୋଟ କରିକି ତାପରେ ତମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖ। ତଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଯିଏ ପରୀକ୍ଷକ ଯିଏ ରହିବ, ତାର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ। ତମର ଉତ୍ତର ଖାତାଟାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ନା ପିଲାଟା ଯଦିଓ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିଛି ତଥାପି ସେ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିଛି, ଏଇ ଭାବଟା ଆସିବ। ନାଇଁ ପୁରାଟା ହିଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିଦେଲେ ସେଥିରେ କଣ ଆସିବ ନା, ଇଏ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ହିଁ ଜାଣିନି। ତମେ ବୁଝିଛ ଶ୍ଲୋକ ଠିକ ଅଛି, ଶ୍ଲୋକକୁ ବୁଝେଇକିରି ତମେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିବି ଦବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟା କୋଟେସନଟାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉ କଥାଟା ତମେ ବୁଝେଇକି ରଖିବ, ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସଟା ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି ସେଟା ତମେ ଯଦି ଖାତା ଘରେ ମଝିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ଲୋକଟାକୁ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରି ପାର। ଆମର ଆଜି କ୍ଲାସ ଯାହା ପଢା ହେଇଛି, କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାର। ହଁ କୁହ। ସାର୍ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ତ ଅଛି, ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ କାହିଁକି କୁହାଗଲା?
ଯୋଉଥିରେ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମହି ଚମ୍ପୁ, ଯୋଉଥିରେ ଗଦ୍ୟ ବି ରହିଥିବ ପଦ୍ୟ ବି ରହିଥିବ ତାକୁ ଚମ୍ପୁ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟା ମହାକାବ୍ୟ ସେଥିରେ ପଦ୍ୟ ରହିବ, ଯୋଉଟା ନାଟକ ତା ଦେହରେ ଗଦ୍ୟ ରହୁଛି। ଯୋଉଥିରେ ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟ ଉଭୟ ରହିଥିବ ଯୋଉ କାବ୍ୟରେ ତାକୁ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମହି ଚମ୍ପୁ। ବୁଝିହଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣିପାରୁଛ? हेलो। तो आज की इस क्लास में इग्नू 21239 सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी पूरी केंद्र की तरफ से आप सभी का मैं डॉक्टर विभुदत्त मिश्र MSP 001 पढ़ाने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूँ। पीछे जो क्लास हुआ था हमने रस का जो स्वरूप है उसके बारे में गहन चर्चा कर लिया है, और उसमें भी आप लोगों का किसी प्रकार का संदेह है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी भी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वहाँ नाटक के जो अंग रहते हैं उस अंग के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जिस प्रकार मानव का शरीर हृदय मस्तिष्क आदि अंगों का योग है और उन सभी का उनकी स्वयं की कार्यशैलियों के आधार पर अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान भी है, मानव शरीर में इन सभी अंगों में किसी भी अंग के न होने पर जैसे मनुष्य शरीर की पूर्णता नहीं होती है, इसे हम लोग पूर्ण अवयव युक्त शरीर नहीं कहते हैं, उसी प्रकार नाटक के भी कुछ अंग होते हैं। उन अंगों का नाम आप लोग एक बार लिख सकते हैं। उसमें नांदी, प्रस्तावना, इतिवृत्त, जनांतिक, अपवारित, सूत्रधार, विदूषक, पंचुकी, पताका स्थानक, आकाश भाषित और भरतवाक्य, ये जो 11 अंग है, मुख्य अंग के हिसाब से 11 अंग नाटक के रहते हैं। तो यह साहित्य दर्पण के अनुसार यहाँ पर हम लोग इतने अंग के विषय में थोड़ा देखेंगे। तो पहले आता है नंदी। साहित्य दर्पणों का आचार्य विश्वनाथ ने नाटक के लिए रंगशाला आदि का निर्माण कर लेने के पश्चात नाटक का सबसे प्रथम अंग नांदी को माना है। नांदी शब्द का व्युत्पत्ति नंद धातु प्रत्यय उइस से होकर नांदी हुआ है। नंदती देवा अत्र, अर्थात किसी भी हर्ष का खुशी में, विशेषकर नाटक के संदर्भ में नाटक का आरंभिक मंगलाचरण जिसमें देवताओं की आराधना या प्रार्थना की जाती है उसे नांदी कहा जाता है। यह नांदी नटों मतलब नाटक के सभी पात्रों के द्वारा की जाती है। ऐसा नहीं कि नाटक का जो डायरेक्टर होगा या प्रोड्यूसर होगा, जो मुख्य होगा या नाटक जो करवा रहा है, वो मुख्य व्यक्ति आकर स्टेज पर मंगलाचरण करके चला जाए, ऐसा नहीं। नाटक में जितने भी पात्र के अभिनय करने वाले होते हैं वह सब एक साथ आकर वहाँ मंगलाचरण करते हैं। यह नंदी
नटों के द्वारा की जाती है। वहाँ जैसे मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, वही 3 प्रकार में से किसी एक प्रकार का होता है। मंगलाचरण क्या कितने प्रकार के होते हैं? मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं, कोई बोल सकते हैं? 3 प्रकार। क्या क्या? आशीर्वादात्मक, उसके बाद नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक, ये 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। ठीक है। और इस लक्षण में नांदी का लक्षण कहते हुए बोल रहे हैं, आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनां तस्मात् नांदीति संहिता मांगल्य शंखचंद्राज कोक कौरव संसिनी पदैर्युक्ता द्वादशभिर अष्टाभिर्वा पदैर्युक्त। आशीर्वादात्मक वचनों से संयुक्त देवता, ब्राह्मण और राजा आदि की स्तुति जिससे की जाती है उसे नांदी की संज्ञा से संबोधित क्या करते हैं। इस नांदी में 12 या 8 पदों का योग होता है और इन पदों में सुबंत, तिङंत और श्लोक के चतुर्थांश पाठ का भी ग्रहण किया जाता है। साथ ही इस नांदी में मंगल सूचक जो वस्तुआं होती हैं, जैसे शंख, चक्र, चक्रवात पक्षी, कुमुद, चंद्र आदि का प्रयोग किया जाता है। नांदी को उसके अष्टपदा या द्वादशपदा से समझने से पहले नांदी को एक अन्य उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। वेदांतेषु यमाहु एकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन् ईश्वर इति अनन्य विषयः शब्दो यथार्थाक्षरः यश्च मुमुक्षुभिर्नियमितप्राणादिभिर्मृज्यते तस्तानु स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायस्तु वः। वेदांत में जिन्हें पृथ्वी और आकाश में व्याप्त एक पुरुष कहा गया है, ईश्वर शब्द जिनमें यथार्थ रूप में अनुगत है और जिनको प्राणादि नियमन करने वाले मुमुक्ष पुरुष हृदय के भीतर ढूंढते हैं, स्थिर योग से सुलभ भगवान शंकर हमारी रक्षा करें। इस उदाहरण तो ये अष्टपद है, न द्वादश पद, और न ही मंगल वस्तुओं का ही प्रयोग किया गया है, न ही इसमें स्तुति की गई है। इसीलिए यहाँ नांदी का लक्षण घटित नहीं हो रहा है। अतः यहाँ नांदी नहीं है। यदि नांदी नहीं है तब क्या है? पूर्व रंग का रंगद्वार नामक अंग है, क्योंकि रंगद्वार में सर्वप्रथम कायिक, वाचिक और सात्विक अभिनय होता है और यहाँ कायिक अभिनय का ही बोध हो रहा है। साथ ही यहाँ नटों के द्वारा नटों की जो अभिनय की वेशभूषा को भी धारण कर लिया गया है, जो कि नांदी में नहीं होती है। अतः यहाँ नांदी नहीं है बल्कि रंग द्वार है। नांदी और रंग द्वार में जो भेद है उसको समझा रहे हैं। इसे एक बार और एक बार सुन लीजिए। नांदी में क्या होता है? नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक या तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण रहेगा, जिसमें शंख चक्र, शंख, चक्रवाक, चंद्र इस प्रकार के शब्द रहेंगे, शुभ शब्द रहेंगे, शुभ सूचक। लेकिन रंग द्वार में जो इस श्लोक में तो ऐसा कुछ है नहीं। वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन् ईश्वर इति अनन्य विषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तः यस्य मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृज्यते तस्तानु स्थिरभक्ति योग सुलभो निःश्रेयसायस्तु वः। यहाँ जो ऐसा कहा गया है, यह यहाँ पर किसी 3 प्रकार के जो मंगलाचरण है कोई भी नहीं, कुछ भी अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए इसको रंग द्वार के अंतर्भाव किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि नांदी पाठ करने से पूर्व पूर्व रंग होना चाहिए। अब यह पूर्व रंग क्या है? पूर्व रंग का अर्थ क्या है?
तत्र पूर्वं पूर्वरङ्गः सभापूजा ततः परं कथनं कविसंज्ञादेर्नाटकस्यापि अथामुखम् यन्नाट्यवस्तुनः पूर्वं रङ्गविघ्नोपशान्तये कुशीलवः प्रकुर्वन्ति पूर्वरङ्गस्य उच्यते प्रत्याहारादिकान्यं वा अन्यस्य भूयांश यद्यपि तथाप्यपि अवश्यं कर्तव्या नान्दी विघ्नोपशान्तये। नाटक के पूर्व जो काज काम किया जाता है तो पूर्व रंग कहते हैं, उसमें सभा पूजन इत्यादि सब आएगा। पूर्व रंग पूर्व का अभिप्राय होता है नायक आदि के आरंभ में, तथा रंग का अभिप्राय होता है रंगमंडप या नाट्यशाला में। इस तरह जब पूर्व और रंग को एक समास करके पढ़ा जाता है तब इसका अर्थ होता है नाट्यशाला में नाटक आदि के विघ्नों की शांति के लिए कुशीलवा जो कुछ प्रयोग करते हैं। पारिभाषिक लोग नाटक की जो वेदी वगैरह स्टेज वगैरह जो बनाते हैं वो लोग जो प्रयोग करते हैं उसके पूर्व रंग कहलाता है। इस पूर्व रंग के प्रत्याहार आदि बहुत से अंग है, परंतु रंगमंच पर प्रस्तुति के समय किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो इसके लिए मेहंदी पाठ होता है। स्टेज की तैयारी से पहले जो सारी क्रिया होती है मंगलवाचक मंगलाचरण करके विघ्न वो पूर्व रंग के अंतर आता है। और स्टेज रेडी है, नाटक मंचस्थ होने से पहले मंगलाचरण जो किया जाता है उसे नांदी बोलकर कहा जा रहा है, जिससे नाटक में कोई भी विघ्न ना आए, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। वो पद विशिष्ट हो सकता है या तो द्वादश पदा विशिष्ट भी हो सकता है। फिर आता है प्रस्तावना। नाटक में प्रस्तावना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रस्तावना को आमुख बोलकर भी कहा जाता है। और नाटक में जब सूत्रधार नटी या पारपार्श्विक से अपने कार्य के संबंध में वार्तालाप करता है, जो सूत्रधार रहता है वो आकर बोलेगा कि आज कैसा नाटक करना है क्या है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतल में सूत्रधार आके बोल रहा है गर्मी का महीना है और पसीना भरा रहा है, इस गर्मी में क्या करें, ऐसा करके पहले ग्रीष्म का वर्णन करके फिर नाटक को संचित करने की वहाँ शुरुआत कर रहा है। प्रस्तावना हुई है कि आमुख भारतीय वृत्ति के चार अंगों की प्रलोचना है। द्वितीय और प्रदर्शन के बाद चतुर्थ स्थान प्रस्तावित आचार्य विश्वनाथ की प्रस्तावना के लक्षण स्पष्ट है। नति विदूषक वापि पारिपार्श्विक एवं वा सूत्रधारेण सहिता संलापयत। वहाँ पर सूत्रधार के साथ साथ विदूषक हो सकता है या नति भी रह सकती है, और दोनों के बीच जो वार्तालाप होते हुए नाट जो मंचस्थ होने वाली नाटक की भूमिका को जो प्रस्तुत करता है, जिसको हम अभी सिनेमा फिल्म वगैरह देखने पर उसे कास्टिंग कहा जाता है। तो उसी को यहाँ सूत्रधार प्रस्तावना के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार की बातचीत करें जिससे प्रस्तुत की सूचना प्राप्त हो। मतलब वहाँ डायलॉग ऐसी होनी चाहिए कि उन बातों में ही समझ में आ जाए कि नाटक किस विषय पर चल रहा है। तो प्रस्तावना का 5 भेद होते हैं: उद्घाटक, प्रत्युद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक और अवलगित। अवलगित तो उद्घाट का जो उदाहरण अर्थ है उसमें पदानि स्वगतार्थानि तदर्थगतये नराः योजयन्ति पदै अन्यै स उद्घाट्य उच्यते। जैसे यथा मुद्रा राक्षसे सूत्रधारः क्रूरग्रह सकेतुश्चन्द्रमसः पूर्णं मण्डलम् इदानीम् अभिभूतमिच्छति बलात् नैपथ्ये की तरह से। यहाँ पर जो मुद्रा राक्षस का जो वाक्य है उसको उद्धृत किया गया है। वहाँ कह रहे हैं अनिश्चित अर्थ वाले पदों के अर्थ की प्रतीति कराने के लिए जहाँ अन्य अतिरिक्त पदों को जोड़ दिया जाता है वहाँ उद्घाटक प्रस्तावना कहा जाता है। एक शब्द है, उसका शब्द का अर्थ समझने के लिए किसी दूसरे शब्द अर्थ को जब लिया जाए तब ऐसा होता है।
उसके बाद जो है कथोद्घात का लक्षण है सूत्रधारस्य वाक्यम वा समादायार्थमस्य वा भवेत् पात्र प्रवेश चेत कथोद्घात उच्यते। यहाँ सूत्रधार का वाक्य या वाक्यार्थ लेकर कोई पात्र प्रवेश करे उसे कथोद्घात कहते हैं। मतलब किसी का बोला हुआ बात को कोई दूसरी पात्र वहां आपके सामने उन्होंने ऐसा बोला था, ऐसा कहे थे, ऐसा कहे थे जब बोलता है तो वहाँ सूत्रधर का वाक्य को लेकर कोई नटी या विदूषक कोई भी वहाँ उपस्थापन स्टेज में उपस्थापन कर सकता है। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं लीलावती का। लीलावती में रत्नावली, रत्नावली में उसका उदाहरण है द्विपद अन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधे दिशोरपि अनन्तात् आनीय घटीति घटयति विधि अभिमताभिमुखी भूतः। सूत्रधार ने वो पर्दे के पीछे से ये बोला है और इस वाक्य को लेकर कोई और पात्र विशेष जो है वो बोल रहा है। प्रयोगातिशय यदि प्रयोग एकस्मिन् प्रयोगः अन्य प्रयुज्यते तेन पात्र विशेषस्य प्रयोगातिशय तदा। जैसे कुंडमाला में यहाँ ज्यादातर ये है शब्द के साथ लक्षण को याद करना है, रखना है, उसके साथ उसके जो उदाहरण दिए गए हैं उसका भी आप लोगों को याद रखना है। प्रवर्तक कालम प्रवृत्तमाश्रित्य सूत्रधृक् यत्र वर्णित तदाश्रयश्च पात्रस्य प्रवेशस्य प्रवर्तकम। जहाँ पर सूत्रधार उपस्थित समय का वर्णन करे और उसी के आश्रय से पात्र का प्रवेश हो उसे प्रवर्तक कहा जाता है। मतलब जिस बात को बताया जा रहा है उसी बात में जिस पात्र का वहाँ संबंध है वही पात्र तभी स्टेज में प्रवेश कर रहा है, तो तभी ये प्रवर्तक प्रस्तावना होता है। उसके बाद आता है अवलगित। अवलगित क्या है? यत्र एकत्र समावेशात् कार्यमन्यत् साध्यते प्रसाध्यते प्रयोगे खलु तज्ज्ञेयम् नामना अवलगितम बुद्धि। जहाँ एक प्रयोग में दृश्यादि के द्वारा समावेश करके किसी पात्र की सूचना सिद्ध किया जाए उसे अवलगित कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतल में राजा दुष्यंत के द्वारा गीत को सुनते हुए सारंग गीत को सुनते हुए और सारंग का पीछा करते हुए कौरवों के आश्रम में पहुंच जाना अवल गीत को सिद्ध करता है। जैसा कि कहा गया है शाकुंतले तवास्मि गीतराजेन हरिणा प्रसवं हृतः एष राजेव दुष्यंत सारंगेणातिरहंसा। इस प्रकार नाटक में जो प्रस्तावना के अंग है वो प्रसंग अवश्य प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रसंग की या जिस विषय की अभिनय होने वाला है उसी का ही यहाँ विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है और उसी का ही ये क्या बोला जाए उपस्थापन किया जाता है। प्रस्तावना को आमुख भी कहा जाता है, फिर आता है इसी
इतिवृत्त का क्या अर्थ है? जो कथा वस्तु, नाटक की जो कथा वस्तु है उसका सूचना देना। थोड़ा एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ हेलो, मेरे आंख में कुछ गिर गया इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, माफ कीजिएगा। हाँ, तो नाटक की जो कथा वस्तु है उसको ही हम इतिवृत्त कहते हैं। इस इतिवृत्त को दो भागों में बांटा गया है, एक है आधिकारिक, दो है प्रासंगिक। नाटक आदि का जो इतिवृत्त दूर तक जाता है और कथा वस्तु का मूलाधार होता है उसको आधिकारिक कहलाता है। और जो प्रासंगिक है वो कहीं पर अंदर बात करते करते कुछ प्रासंगिक जो बातें आ गया है उसे प्रासंगिक इतिवृत्त कहते हैं। वो भी दो भागों में बांटा गया है, प्रासंगिक कथा वस्तु पताका या तो प्रकरी। पताका इतिवृत्त प्रधान इतिवृत्त के साथ दूर तक चलता है। और अम, जैसे पहले वाला जो आधिकारिक कथा वस्तु उसका उदाहरण मान लिया जाए, रामायण में राम की कथा वस्तु, राम की कथा वस्तु आधिकारिक कथा वस्तु है, वो मूल रूप से जाएगा। और आदि उसमें राम की कथा वस्तु के बीच में फिर जो बाली का प्रसंग आएगा, सुग्रीव का प्रसंग, बाली का प्रसंग वो प्रासंगिक है वहां पर। या जाम्बवान का कुछ प्रसंग आ गया, या तो सबरी प्रसंग जो है वो प्रासंगिक है, प्रसंग के तौर पर आता है। तो इसी प्रसंग की कथा वस्तु को फिर पताका या प्रकरी बोला जाता है। दो भागों में बांटा गया है प्रासंगिक कथा वस्तु को। इसमें अ, जैसे सुग्रीव की कथा वस्तु को पताका की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि वो प्रासंगिक है लेकिन कुछ दूरी तक रहती है, लंबी है तो सुग्रीव की कथा। और बेणी संहार में भीम की प्रसंग, शाकुंतल में विदूषक, अभिज्ञान शाकुंतल में विदूषक भी बहुत लंबी दूरी तय कर किया है। तो वहां पे भी पताका है। प्रकरी जैसी है, प्रकरी रामायण में देख लें तो सवरी उपाख्यान वो प्रकरी है, छोटी सी बीच में आया। या तो जटायु का प्रसंग जो है, जटायु प्रसंग भी वहां पर प्रकरी के अंतर्गत है। फिर आता है जनांतिक। नाट्य की दृष्टि से कथा वस्तु तीन भेद है, सर्वश्राव्य, नियत श्राव्य और अश्राव्य। जो सभी पात्रों के द्वारा सुनने योग्य है वो सर्वश्राव्य है। और नियत श्राव्य जो कुछ निश्चित पात्रों के द्वारा ही सुनने योग्य है
पात्रों के द्वारा मतलब मान लीजिए अभी स्टेज में नाटक चल रहा है, वहाँ 5 पात्र अभिनय कर रहे हैं स्टेज में। तो एक ने कुछ बोल रहा है, तो बाकी चारों को सुनना है, तो वो हो गया सर्वश्राव्य। और जो निश्चित पात्रों के द्वारा सुनने योग्य है, मान लीजिए 4 5 है, एक बोल रहा है, 4 सुनना है, तो 4 को सुनाना नहीं है, किसी 2 को ही सुनाना है। तो वहां पर जो डायलॉग बोल रहा है, वो धीरे से बोलेगा या चुप के बोलेगा, कैसे भी बोले, ऐसा बोलेगा कि ऑडियंस को तो सब सुनाई देना है। लेकिन पात्र जो है, पात्र इस 2 पात्र को ही लक्ष्य करके बोला जा रहा है, तो वो नियत श्राव्य है। और जो स्वगत होकर बोलता है, अपने मन में बोला, ऑडियंस तो सुन रहा है, ऑडियंस को सब कुछ सुनने वाला, लेकिन ये पात्र बाकी 4 नहीं सुनते हैं, वो मन ही मन सोच रहा है, तो स्वगत है वो अश्राव्य। इन 3 कथा वस्तुओं के नियत श्राव्य कथा वस्तु को 2 भेद है, एक है जनांतिक और एक है अपवारिक। नियत श्राव्य के प्रथम भेद जनांतिक में किसी बात को किसी विशेष व्यक्ति आदि से छुपाने के लिए हाथ की एक विशेष मुद्रा को बनाया जाता है। इसमें केवल 2 व्यक्तियों के बीच संवाद होता है, और यह संवाद सभा में सभी के मध्य ही होता है। विश्वनाथ जी कहते हैं जनांतिक का जो लक्षण दे रहे हैं, स्त्री पताक करे करेण अन्यान अपवार्यांतरा कथाम् अन्योन्यामन्त्रणं यत् स्यात् तज्जनान्ते जनान्तिकम्। कश्चित् अर्थः यस्मात् गोपनीयः तस्य अन्तः अतः ऊर्ध्वं सर्वाङ्गुलीनां पितानामिकं त्रिपताकलक्षणं करं कृत्वा अन्येन सह यन्मन्त्रते तज्जनान्तिकम्। 3 अंगुली ऊपर उठाए और कुछ कहे, तो बात से गुप्त मंत्रणा दिया जा रहा है या छुपा कर बोल रहा है, यह दिखाना है। लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं होता है, ये थिएटर का सीन वगैरह का विश्लेषण है, इसीलिए ये सब की आवश्यकता होती है। आप जब हम लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म में ऐसा नहीं है, जो कैरेक्टर मन ही मन कुछ बोल रहे हैं, हमें समझ में आ जा रहा है कि मन ही मन कर रहा है, क्योंकि उसमें जो बोलने की ट्यून है, वो साउंड है, वो अलग प्रकार का आती है। टीवी में हम लोग जो देखते हैं या मोबाइल में ऑनलाइन में देख रहे हैं, वेब सीरीज में भी आप लोग देख रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, मन ही मन जो कैरेक्टर बात कर रहा है, वो हम सुन रहे हैं, लेकिन उसका कैरेक्टर के पास जो दूसरा पात्र अभिनय कर रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन दर्शक सुन रहा है। तो मन ही मन का जो है, उसमें कोई सिंबल की आवश्यकता नहीं है, उसमें लिपिंग नहीं होती है। मन ही मन वाली बात में वो मन ही मन रहता है, मौन रहता है, लेकिन साउंड आती है, मतलब वो मन में चिंतन कर रहा है। ये सारी सीन में फिल्मों में अलग है, और जो थिएटर में ड्रामा हो रहा है उसमें अलग होता है। तो इस विषय को आप लोग ध्यान रख के ही सोचना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं बोलना। ये जो है हमारी थिएटर में जो चलने वाली नाटक भूमिका है, उसी के ऊपर विश्लेषण है, ना कि फिल्मों के ऊपर। फिल्म इसको अनुकरण नहीं कर रहे हैं आजकल। पहले के जमाने में कभी कहीं हद तक इस बारे में वो लोग ले रहे थे, जानते थे, लेकिन पूरी तरह नहीं हो पाया। आजकल वो सब नहीं ले रहे हैं। पहले तो जो फिल्म वगैरह चल रहा था, उसमें नायक नायिका के साथ साथ विदूषक और विदूषक की एक नायिका भी रहती थी। तो साइमल्टेनियसली 2 स्टोरी, मतलब दोनों की कहानी चलती रहती है। लेकिन आजकल में नायक के साथ कॉमेडियन नहीं रह रहा है, नायक ही सब कुछ है, कॉमेडियन भी वही है, वही थिएटर बीटर सब कुछ वही है। ऐसा है, सिंगल हीरो रोल जो चल रहा है वही चल रहा है। आप क्राफ्ट सिनेमा देख लीजिए, एक ही कैरेक्टर, दो ही कैरेक्टर में फिल्म समाप्त हुआ है। बहुत सारे सिनेमा ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम जो पात्र अभिनय कर रहे हैं, 5 8 ऐसे ही, 5 8 में ही खत्म हो गया। डरना मना है सिनेमा देखिएगा, उसमें
पात्र तो बहुत आए हैं, लेकिन मूलभूत में दो पात्र की कहानी में ही खत्म हो रहा है, ऐसी बातें हैं। अ, फिर अपबारी। अपबारित भी नाटक की कथा वस्तु के नियत श्राव्य का दूसरा भेद है। इसमें किसी बात को किसी एक व्यक्ति से छिपाकर एक और मुक्त करके दूसरे पात्र को प्रकाशित किया जाए, उसको अपवादित कहा जाए। जब आप नाटक पढ़ेंगे अभिगम शाकुंतल, वहां पर ब्रैकेट में लिखा होता है स्वगत, अपवार्य, नैपथ्य। इस सब समझ में आ जाता है कि ये मन में बोलना है, ये पर्दे के पीछे से बोलना है। ये सब इसमें सूचना दी जाती है। फिर आता है सूत्रधार। सूत्रधार जो रहता है वो संचालक है नाटक का। वो संपूर्ण कथा वस्तु का पहले उपस्थापन करेगा। सूत्रम धर तथा प्रविशति नांद्यन्ते सूत्रधारा। नांदी हो जाने के बाद, मंगलाचरण होने के बाद सूत्रधार आता है। अपना नाट्य का जो मूल स्रोत है, मूल विषय वस्तु है, उसको वो बोलता है। फिर आता है बीजम। अनुकूल भाग्य अभिलषित पदार्थ। अ, बीजम जो है कथा वस्तु का जो मूल है, उसी को कहा जा रहा है। फिर विदूषक। नाटक या काव्य में विदूषक नाटक या काव्य को गति प्रदान करता है। उसे दर्शकों को मनोरंजन के हिसाब से दिया जाता है, मनोरंजन करने के लिए। वो राजा या जो मुख्य नायक होते हैं, नायक को हंसाता रहता है। अ, आचार्य विश्वनाथ ने बीटा चेटा और विदूषक को कुछ मैसेज किया है। सर ने थोड़ी देर से ज्वाइन की। कौन सा इकाई पढ़ा रहे हैं? ये चल रहा है इकाई 12। इकाई ट्वेल्थ यूनिट पढ़ा रहे हैं। ठीक है। ये हाँ, नाटक का अंग ही पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ विदूषक इत्यादि का विषय जो है, उस प्रसंग में जो बीट चेट वगैरह हैं, इन पात्रों को भी समान स्तर में अंतर्भाव करते हैं साहित्य दर्पण का। कुसुम बसंतादिभिः परम वपु वेश भाषाद्यैः हास्यकरः कलहरति विदूषकः स्यात् स्वकर्मज्ञः। हाँ, किसी फूल अथवा बसंतादि पर जिसका नाम हो और अपनी क्रिया, शरीर, चेष्टा, वेश और भाषा आदि से हंसाने वाला हो, दूसरों को लड़ाने में प्रसन्न रहता हो और अपने मतलब में पूरा ध्यान रखता हो, अर्थात अपने खाने पीने आदि की बातों को जो कभी न भूलता हो, उसे विदूषक कहा जाता है। यह कभी कभी कथा के विकास में भी उपयोगी होता है। इस अभिज्ञान शाकुंतल में विदूषक की महिमा अपरंपार है। ये आती है पंचुकी। पंचुकी भी एक पात्र है, अंग है। पंचुकी नाटक का एक वृद्ध ब्राह्मण पात्र होता है। यह विद्वान
कुशल और नीति निपुण होता है। नाटक में पंचुकी संस्कृत भाषा बोलता है। मूलतः यह अंतपुर का सेवक होता है। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतल में पंचुकी जो है वो वातायन है। एक नाटक पढ़े हैं पूरी तरह और पूरा नाटक को ठीक से याद है, और तब ये नाटक के अंग वगैरह आलोचना हो तो आप लोग समझ पाएंगे। नहीं, अंग हम नाटक ही नहीं पढ़े हैं और नाटक के अंग कैसे, थोड़ा कष्ट होता है तो समझने में या याद रखने में। आप लोगों को इसका भी लक्षण उदाहरण पूरा याद रखना है, और संस्कृत में लिखने के बाद ही उसका हिंदी में व्याख्या कीजिएगा, तो उसका अंक परीक्षक का इम्प्रेशन, परीक्षक को उसका इम्प्रेशन अधिक रहता है। अच्छा लगता है उस प्रकार का। फिर पताका स्थानक जो है, जिस नाटकादि में पात्र को तो कुछ अर्थ प्राप्त होता है, पर किन्हीं कारणों से उसे वह प्राप्त न होकर अन्य की प्राप्ति हो जाए तो ऐसे स्थानों पर पताका स्थानक का विधान किया जाता है। इसमें रत्नावली का उपाख्यान दिया गया है उदाहरण के, वास्तवोत्तायम राजा यदा सततं पासम मोते तदा तदुक्त्वा सागरिकायमिति प्रतिविज्ञाय। तो पहले बासवदत्ता है यह सोच रहा था, जब देख रहा है तो सागरिका है, क्रिया में सागरिका संकेत है, कुछ पाना है और कुछ अलग कुछ हो गया। यहाँ पर उपचार तथा प्रीति के अनुकूल व्यापार होने से सहजता और शीघ्र ही अधिक गुणयुक्त अर्थ संपत्ति हो, वहाँ प्रथम प्रकार का पताका स्थानक होता है। द्वितीय पताका स्थानक क्या रहता है? जहाँ अनेक बंधुओं में आश्रित अतिशय श्लिष्ट वचन हो, वह दूसरा पताका स्थानक होता है। रक्त प्रसादी भुवः शतविग्रहाश्च स्वस्था भवन्तु पुरुराजसुता समृत्य। श्रेणी संहार नाटक का यह पद्य है। पंचुकी श्रेणी संहार का बहुत सारा विवरण दिया गया है, देख सकते हैं। इसी प्रकार पताका स्थानक का रहता है। पूरे आकाश भाषित किया है। नाटक की अश्राव्य सर्वश्राव्य आदि युक्तियों के भेदों में से एक है जो श्रव्य साध्य है। आचार्य विश्वनाथ ने इसका आकाश भाषिक विलोचन, मतलब जैसे आकाशवाणी होता है, किम भविष्यति यमुना के बिना पात्रम प्रयुज्यते, जो पात्र उपस्थित नहीं है लेकिन डायलॉग वहां पर जरूरी है, तो वहां जिस माध्यम से बोला जाता है उसे आकाश भाषिक कहा जाता है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विवरण नाटक चल रहा है, और जब वसुदेव देवकी को लेकर विवाह के उपरांत लेकर जा रहा है, कंस महाराज कंस लेकर जा रहे हैं, और तभी आकाशवाणी हो रहा है कि नहीं, जिसको तू आज लेकर जा रहा है उसका अष्टम गर्भ वही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो यहाँ पर पात्र नहीं है वहाँ पर, लेकिन पात्र के डायलॉग जो है, डायलॉग तो है, जो उक्ति है वो उक्ति सुनाई देती है, तो उसको आकाशवाणी ऐसी बात है, आकाश भाषित कहते हैं। फिर अंत में ये सब होने जो नाटक की अंत में भरत वाक्य रहता है, नायक सूत्रधार अथवा नाटकीय पात्रों की ओर से जनता के लिए जो अंतिम आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, कल्याणात्मक श्लोक होता है उसे भरत वाक्य कहा जाता है। भरत का अर्थ नृत्य या अभिनेता है। भरतानाम वाक्यम भरत वाक्यम होता है। भरत ने जो वाक्य, भरत मुनि ने जो वाक्य बोला है उसी को कहते हैं। तो यही है, वरदान स्वरूप रहता है, आशीर्वचनात्मक रहता है।
जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतल का है, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती सुतमहताम महीयताम अमापि च क्षपयतु निरलोहित पुनर्भव परिगत शक्तिरात्मभू। राजा प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील हो, ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी का पूर्ण सत्कार हो, सर्वशक्तिमान स्वयं दूषित मेरे पूर्व पुनर्जन्म को निवृत्त कर दिया था, मोक्ष दे दूं, अपना कहा गया है। ठीक है, तो यह है नाटक के अंगों के विषय में। अर्थोपक्षेपक और अर्थ प्रकृतियां देखेंगे। उससे पहले कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप लोग उत्तर देंगे। जितने पढ़ाए गए हैं उसका कहाँ तक आपने मनन किया है, अध्ययन किया है, डिस्कशन थोड़ा करेंगे तब जाकर आगे बढ़ेंगे। आप में से बोलिए, साहित्य दर्पणकार के मत में काव्य का लक्षण क्या है? काव्य किसे कहते हैं? बोलिए चिन्मयी जी। साहित्य दर्पणकार के मत में, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ रघुराज के अनुसार हमारा उनका जो काव्य लक्षण है वो क्या है? बोलिए काव्य लक्षण। कौन बोलेंगे? बोलिए वासुदेव जी। वस्तुता, हेमंत। प्रश्न पूछने लगे तो ये लेफ्ट हो जा रहे हैं, इतनी बात करिए क्या चल रहा है। पसंद करेंगे तब जाकर आगे बढ़ेंगे ना, नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा। कोई बोलिए कुछ, जो कुछ समझे हैं उसको बोले, पूरा संस्कृत वाक्य नहीं बोलना है। काव्य का लक्षण क्या है? साहित्य दर्पण में काव्य का लक्षण क्या क्या है? सुमंत्री। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, very good। वाक्यम रसात्मकम काव्यम बोला गया। और वाक्य का लक्षण क्या दिया गया है? वाक्य किसे कहेंगे? विश्वनाथ हाँ, वाक्य किसे कहेंगे? वाक्य की क्या लक्षण दिया गया है? वाक्य जिसमें कर्म कर्ता और क्रिया हो और वो एक सही से एक किसी अर्थ को बुझ समझा हो, उसको ଗୋଟେ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ସେଇଟାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। तो नहीं बोले हैं साहित्य दर्पण काल में, कर्ता क्रिया कर्म रहेगा। जी में भगवान आगच्छतु, आप आइए, मैं बोल जाएगा तो कर्म नहीं है। कोई क्लास में बैठा है, मैं उसको बोलूंगा उठिए, वहां तो करता भी नहीं, तो वाक्य है कि नहीं है?
का एक समीचीन जो लक्षण दिया गया है साहित्य दर्पण में, क्या दिया गया है, बार बार मैं बोल उसका मैं स्लाइड करके भी दिखाया था। बोलिए। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति युक्त योग्यता, पदोच्चय। आसक्त और आसक्ति से युक्त पदों के समूह को वाक्य वाक्य कहते कहा जाएगा। हाँ, तो आकांक्षा क्या है? हैं। आकांक्षा, उसमें जो हम लक्षण देखना चाहते हैं वही आकांक्षा है। उसमें वो वाक्य से जो हम समझते हैं वही आकांक्षा है। जैसे उदाहरण, इस विषय में उदाहरण क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। रा, राम खाना खाता है। इसमें आकांक्षा है कि वो खाने के लिए चाहता है। इस वाक्य से हम जानते हैं कि मतलब कि राम ने खाने के लिए इच्छुक है। हम्म, खाना खा रहे, इसलिए आकांक्षा है। और कोई समझा सकता है? हेमंत, सुष्मिता, देखिए, जब आकांक्षा क्या है, उसमें एक पद का उच्चारण करते ही दूसरे पद क्या है, वाक्य को अन्वय करने के लिए जब दूसरे पद की अपेक्षा रहती है तब उसे आकांक्षा कहते हैं। आकांक्षा युक्त ना हो, आकांक्षा न रहने पर भी वाक्य माना जाए तो मैं एक साथ अभी 10 शब्द बोल दूं तो भी आप उसे वाक्य समझेंगे। मैं अभी स्विच, चेयर, पेपर, बैग, गऊ, अश्व बोल दिया, अभी इसको वाक्य मान लेंगे? नहीं, नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आकांक्षा रहती है। मान लीजिए मैं अभी गऊ, गाय बोला, तो गाय क्या है, आगे तो बोलना है, वाक्य को पूर्ण करना है, तो गाय जा रहा है, अभी ऐसा बोलने पर हाँ वाक्य सही है। क्योंकि अकेले गाय बोल देने पर आकांक्षा रह रहा है, आकांक्षा रहित को भी हम वाक्य माने तो वहां पर क्या होगा, जहां पर बहुत सारे शब्द एक साथ बोल दिए जाने पर भी उसको वाक्य की श्रेणी में रखना पड़ेगा, ये नहीं, आकांक्षा युक्त होना। फिर आता है योग्यता। योग्यता क्या है, समझाइए। और कोई दूसरा कोई बोलिए। कानूनी, कानूनी जी। पदों के अर्थ में जो संबंध है, दोनों एक दूसरे में जो संबंध है उसमें कोई बाधा ना आए उसको योग्यता कहा जाता है। जैसे उदाहरण,
बोलिए उदाहरण क्या है योग्यता का? योग्यता का उदाहरण क्या है? सर समझ में नहीं आ रहा है कैसे बोलूं। वो जैसे कि मैं एक उदाहरण है जब मुझे। योग्यता योग्यता के मानदंड पर हम वाक्य को मानेंगे तो योग्यता रहित जो होगा उसको हम वाक्य नहीं मानेंगे, यही बात है। तो योग्यता क्या है? तो जिस वाक्य में जो पद दिया गया है उस पदों के बीच अन्वय जो है यो योग्यता आधारित होता है। अभी मैं बोलूं कि कोई मैं जा रहा था, मैं देखा कि गोविंद नामक एक व्यक्ति आंख में सिंचाई कर रहा था, आंख से सिंचाई कर रहा था, अग्नि के द्वारा सिंचाई कर रहा था, अपनी खेतों में अग्नि से सिंचाई कर रहा था। तो जो सुनेगा, सुनने वाला क्या बोलेगा? थोड़ा ये पगला गया है, क्योंकि सिंचाई का जो काम है वो सिंचाई काम हमेशा पानी से होता है, न कि आग से। आग आग के द्वारा, अग्नि के द्वारा सिंचाई का काम हो ही नहीं सकता, योग्यता ही नहीं है अग्नि में सिंचाई करने का। तो जो पद का समूह को हम वाक्य बोलना चाहते हैं, उस पदों के बीच पदों के संबंध पद पद के साथ, एक पद के दूसरे पद के साथ योग्यता आधारित संबंध रहना चाहिए। और योग्यता आधारित संबंध नहीं बन रहा है तो हम उसे वाक्य नहीं कह रहे हैं। अभी मैं बोलूं कि बंदर कितना सुंदर गाना गा रहा था, स्टूडियो में, रेडियो स्टूडियो में हमने देखा कि आ, ये क्या बंदर गाना गा रहा था। तो बंदर कैसे गाना गा सकता है? नहीं गा सकता है। कोई बोलेगा नहीं, मैं देखा आकाश में एक फूल फूटा था, उसका बहुत सुंदर सुगंध आ रही थी। ये कैसी बात है? आकाश में तो फूल फूटेगा ही नहीं, उगेगा ही नहीं। आकाश और कुसुम ऐसे बोलते हैं, और संभव ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है। आकाश कुसुम में सुगंध ही नहीं, आकाश कुसुम तो है ही। पलाश पुष्प का बहुत सुगंध है, पलाश पुष्प का कहाँ से सुगंध आएगा? सुगंध ही नहीं है पलाश पुष्प, देखने में शुद्ध रक्त वर्णन युक्त है। ठीक है, तो आकांक्षा हो गया, योग्यता हो गया। आसक्ति क्या है? देखिए ये सब प्रश्न परीक्षा में आने वाला है और आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं। बस सरल विषय जो है इसको आप लोग कंठस्थ करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको तो आप डेली लाइफ में भी व्यवहार कर रहे हैं। बोलिए आसक्ति का अर्थ क्या है? योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त पदोच्चय वाक्यम बोला गया है। अभी योग्यता आकांक्षा के विषय पर आलोचना हो गई, योग्यता के ऊपर आलोचना हो गई। अब आसक्ति क्या है? आसक्ति नहीं है, ये आसक्ति। हाँ जनते तत्व में हंसी विषय आसक्ति। बोलिए और कोई बोलिए। अरे याद नहीं है तो कम से कम कहीं पर लिखे हैं तो नोट बनाया कि देख के बोल रही है। डिस्कशन में भाग नहीं लेंगे तो कैसे होगा? आप लोगों का ये डिस्कशन एंड काउंसलिंग क्लास है और आप लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बोलिए। बुद्धि के अ, अभिक्षेप को आसक्ति कहते कहते हैं। जैसे कि राम वनवास गए थे। तो समझाइए। इसमें कोई आसक्ति पद का सन्निवेश नहीं हुआ। तो
बोल रहे हैं आसक्ति का अर्थ क्या है? बुद्धि विच्छेद रहिततया अव्यवधानेन पदोच्चारणम। बुद्धि विच्छेद न होकर अव्यवधान पूर्वक, ज्यादा व्यवधान नहीं, स्वल्प व्यवधान पूर्वक कोई उस शब्दों का उच्चारण करे, तब जाकर उसको वाक्य में मान्यता दिया जाएगा। मान लीजिए मैं अभी किसी को बोल रहा हूँ, हेमंत को बोल रहा हूँ कि हेमंत जी आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं अभी क्या कहूंगा? हेमंत जी बोल दिया। अभी रात 12 बजे बोलूंगा आप इस प्रश्न का फिर कल शाम को बोलूंगा उत्तर दीजिए। ये जितने शब्द मैंने उच्चारण किया है उन शब्दों का क्या अन्वय हो पाएगा? नहीं होगा। नहीं। इसीलिए मतलब कि स्पेस रहकर तो बात बोला जाता है, उसको उसमें आकृति कहा जाता है। जैसे कि नहीं सुनाई दे रहा मैं, है। और एक बार बोलिए चिन्मय जी, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं सुनाई दे रहा है। मतलब मैं अभी जो बोला राम, राम ने वनवास गए थे, मैं अभी बोलूंगी राम, थोड़ी देर पे बोलूंगी वनवास, थोड़ी देर पे बोलूंगी गए थे। तो जो हाँ स्पेस रहा, अंदर जो स्पेस रहा, हाँ, उसमें कोई वाक्य की संपूर्णता का नहीं आएगी। मान भाव लीजिए नहीं आप आएगी। राम, तो हाँ इस आप बोल उसको रहे, हम हाँ असत्य बोलेंगे। हाँ आ सकती अव्यवधान है ना। बुद्धि जो व्यवधान उस दो व्युत- शब्द को, बुद्धि छेद नहीं होना एक, चाहिए। हम हाँ, एक दो शब्द शब्दों के के, दो बीच शब्दों में जो में जो बुद्धि व्यवधान है वो बुद्धि व्यवधान जितना रहना चाहिए डिस्टेंस उतना रहते ही हैं। रहता है उतना ही। अभी मैं आपको एक वाक्य बोल रहा हूँ, एक वाक्य बोल, एक शब्द बोल रहा हूँ, शब्द के बहुत सारे शब्द मिलकर अभी बात कर रहा हूँ। तो एक शब्द बोलने के बाद जब दूसरे शब्द की जो बीच में जो अंतर है, वो उतना अंतर में आपका बुद्धिच्छेद नहीं होगा। मतलब मैं एक हाँ, शब्द बोला हूँ, उस शब्द का दूसरों, अर्थ आप समझे हाँ, हैं, आप दूसरा शब्द आ गया, बस उसका अर्थ लेकर आप वाक्य का अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन आप राम वनवास गए थे इस वाक्य में, आज मैं बोलूं राम, कल शाम रात को 12 बजे मैं बोलूं वनवास, और फिर जाकर बोलूं कि गए थे, तो आप बोलेंगे सर पगला गए हैं। अरे कहाँ राम, कब वनवास, क्या वनवास, अरे कौन गया था, कहाँ गया था, क्या है? क्योंकि आप राम को भूल चुके हैं। मैं राम बोला था ये आप भूल गए हैं, आपका याद नहीं रहेगा, बुद्धिच्छेद हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो इसीलिए इसी प्रकार का आसक्ति रहित पदों समूह को हम वाक्य नहीं मानेंगे। जहाँ पर आकांक्षा योग्यता आसक्ति रहेगा वहां पर ही हम वाक्य, वहाँ उस पद समूह को हम वाक्य मानेंगे। अब आ रहा है पद। पद जो है सुप्तिंगंतम पदम के आधार वर्णाहा पदम, एक वर्ण की कुछ अर्थ, व्यवहार योग्य कुछ अर्थ, वर्ण मिलकर जब कुछ व्यवहार योग्य कुछ अर्थ को जब समझाएं तो तब उसे पद संज्ञा कहा जाएगा, भले ही वो एक वर्ण क्यों ना हो। तो उसके पद में निकलने वाला अर्थ को पदार्थ कहा जाएगा। अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए। ये मान लीजिए प्रश्न आ रहा है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो ये प्रश्न साहित्य का भी हो सकता है और न्याय दर्शन या तर्क संग्रह का भी हो सकता है। सब तो पदार्थ उसमें लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पदार्थ मतलब पदस्य अर्थ है, पद के जो अर्थ है वो कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए। 3 प्रकार। क्या क्या? बस कौन है, वाक- वाक- वाच्य, लक्ष्य, हाँ वाच्यार्थ, ଆଉ हाँ वाच्य लक्ष्य और ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ବ୍ୟଙ୍ଗ ନୁହଁ, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ବ୍ୟଙ୍ଗ। ବ୍ୟଙ୍ଗ, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ବ୍ୟଙ୍ଗ। ହଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ହଁ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଯଦି କହିଦେଲ ସରିଗଲା କଥା ତ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବ୍ୟଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ହଁ, ବରିୟ ଫଳା। ବର୍ଷା ହଉଛି ବେଙ୍ଗ ବାହାରିଲେଣି ସେ ସବୁ କହିଦବ ନାଇଁ ବେଙ୍ଗ ବୋଲି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି।
ताले गुटे हला वाच्यार्थ गुटे हला लक्ष्यार्थ आ गुटे हला व्यंग संज्ञार्थ वाच्यार्थ व्यंगार्थ व्यंगस्यति त्रिधा तो मतलब वाच्यार्थ कहले कोन केमती कोन बुझिबा ताकू बुझा हिंदी में नहीं बोल सकते हैं तो कोई भी अनम्यूट होकर उड़िया में भी बोल सकते हैं आप समझे हैं कि नहीं यह देखना है ବାଚ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଅଭିଧାନ ଯେମିତି ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଯୋଉ ଶକ୍ତିରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିବ ମାନେ ଅଧିକ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପାୱାର ଥିବ ୱାର୍ଡ ପାୱାର ଥିବ ଅଧିକ ସେଇଟା ହଉଛି ବାଚ୍ୟ ଅର୍ଥ। जो शब्द शुणिला मात्र के गुटे जो अर्थटा हमर डायरेक्ट प्रतीति हुए बा डायरेक्ट सीधा सड़क हम जानि पारू ताकू हमें वाक्यार्थ बोली करी कहबा गुटे शब्द शुणिला मात्र के जो अर्थ हमर मन मस्तिष्क रे उदय हुए सेटा ही तार वाक्यार्थ प्रथम ठीक अछि ताकू मुख्य अर्थ मध्ये कुआ जाय वाक्यार्थर अन्य नाम होची मुख्यार्थ ये मुख्यार्थ जो वृत्ति द्वारा जना पड़े से वृत्ति को कौन कहा जाए जिस वृत्ति के माध्यम से हमें पता चले कि यह मुख्यार्थ है उस वृत्ति का नाम क्या है वाच्यार्थ किस वृत्ति के बल पर दम पर प्रतीत होता है प्रकाशित होता है वृत्ति का नाम अर्थ अभिधा बोलिए वृत्ति क्या अभिधा 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 और अभिधा के संकेत ग्रह कितने जगह पर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं कितने प्रकार बुद्धि चार ही प्रकार के होते हैं चार प्रकार के जाति गुण क्रिया व्यक्ति के आधार पर शक्ति ग्रह होता है जाति गोत्व पशुत्व पुरुषत्व ये जाति में आ गया जाति गुण को शुक्ल शुक्ल गौ शुक्ल जो है शुक्लत्व जो है वो गौ में गाय में रह रहा है उसका गुण है वो गुण में आएगा फिर आता है जाति गुण क्रिया क्रिया पचती द्रव्य ଆସିବ କି द्रव्य हाँ सही द्रव्य माने व्यक्ति व्यक्ति द्रव्य माने व्यक्ति जाति गुण द्रव्य क्रिया द्रव्य व्यक्ति विशेष कौन हरि गोविंद डिथ डबिथ इत्यादि ठीक है तो इतने हो गए ଆଉଥରେ କହିଲେ ଜାତି द्रव्य द्रव्य गुण जाति द्रव्य गुण क्रिया जाति द्रव्य गुण ठीक है फिर आगे बोलिए लक्ष्यार्थ का अर्थ क्या है लक्ष्यार्थ कहाँ पर होता है और लक्ष्यार्थ का अर्थ क्या है बाकी जो लोग नहीं बोल रहे हैं क्या ଯୋଉଟା ଯୋଉ सुनने के लिए ବୁଝିବା है ଶକ୍ତି ବୁଝାଏ लक्ष्यार्थ का अर्थ ଯୋଉଟା क्या है ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରୁ ତାର ସେଇ ଅର୍ଥ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ସେଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯୋଉଟା ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ କୁହାଯାଏ ବୋଧ ଯେମିତି ଯେମିତି କି उदाहरण दीजिए ରାସ୍ତା କୁହାଗଲା ତ ରାସ୍ତାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ କୁହାଗଲା ରାସ୍ତା ତ ରାସ୍ତାରୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁ ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିଯାଉ ନା ରାସ୍ତା କହିଲେ ଏମିତି ଯୋଉ ପିଚୁ ରୋଡ ହେଇପାରେ କି ପକ୍କା ରୋଡ ହେଇପାରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଆମର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସେନା ବୋଧ ଲକ୍ଷଣ କିଛି ବୋଧ ଶକ୍ତି କିଛି ଆସେ ସେଇଟାକୁ ऐसा नहीं है इसे क्या है जब
पद का जो मुख्य अर्थ है, मुख्य अर्थ अपना अर्थ समझाने में असमर्थ हो, उसी जगह पर उसी शब्द से हम कोई दूसरा परिकल्पित अर्थ को हम समझें, तब वहां पर लक्षणार्थ माना जाता है। जैसे कि मतलब प्रकृति गंगायाम पर घोषः, जैसे गंगायाम घोषः। गंगायाम घोषः में क्या है? गंगा शब्द का अर्थ है बहने बहती हुई पानी, और गंगा याम उसमें जो सप्तमी है, बहती हुई पानी के ऊपर। और घोष शब्द का अर्थ क्या है? छोटा आभीरपल्ली, छोटा सा गांव, कुटीर विशिष्ट गांव, कुड़िया वाला जो गांव है, चाल छप्पर वाला जो गांव है, उसी तरह एक छोटा सा गांव है। तो बहती हुई पानी के ऊपर छोटा सा गांव नहीं हो सकता। बहती हुई पानी में गांव कैसे बैठ सकता है? गांव नहीं रह सकता, तो ले जाएगा, वहां के ले जाएगा। क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं उस जगह पर? गंगायाम, जो गंगा पानी में या बहती हुई पानी के ऊपर जो है, गंगा रूपी, उसका अर्थ क्या कर लेते हैं? पानी के ऊपर ना करके गंगा नदी के तट पर ये कर लेते हैं, गंगा तीरे घोषः। ठीक है। तो यहाँ पर लक्षण मुख्यार्थ जो है, मुख्यार्थ यहाँ अन्वय नहीं हो पा रहा है, मुख्यार्थ अपना अर्थ समझाने में असमर्थ है, क्योंकि वह वाक्य में अन्वय नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हमने क्या किया, मुख्यार्थ वहां बाधित हो जाने के कारण वहां से उसी पद से एक लक्षार्थ द्योतित होता है, जो मुख्यार्थ बाधित होने के कारण होता है। और यह जो होता है वह किस वृत्ति से होता है? जैसे मुख्यार्थ अभिधा वृत्ति से होता है, वैसे लक्षार्थ कौन सी वृत्ति से होता है? तो वह लक्षणा वृत्ति से होता है। लक्षणा के द्वारा ही लक्षार्थ समझा जाता है। ठीक है। अभी बोलिए, लक्षणा, लक्षणा जो है वो कितने प्रकार की होती है? टोटल कितने प्रकार की लक्षणा के ऊपर आलोचना किया है विश्वनाथ कविराज ने? साहित्य दर्पण में कितने प्रकार की लक्षणा बोला गया है? नोट भी दिया हूँ ग्रुप में, नोट देने के बाद भी आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। विषय को आप लोग जितना सीरियस लेना चाहिए उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। आपके असाइनमेंट वगैरह देखने पर पता चलेगा कि आप लोग क्या पढ़े हैं। से जो रूढ़ी लक्षण और प्रयोजन अर्थ लक्षण, बोलिए, टोटल लक्षणा कितने प्रकार का है? साहित्य दर्पण में कितने प्रकार के लक्षणा के विषय पर होना है? 2 प्रकार के रूढ़ी, हम्म, तो- रूढ़ी और उसका लक्षण और टोटल प्रयोजन अर्थ। हाँ, लक्षणा दो प्रकार का ही होता है। टोटल लक्षणा कितने प्रकार की है? टोटल सर कल जो नोट्स दिए थे वही वाला हाँ, 80। वही वाला। टोटल कितने प्रकार के हैं? सब मिलाकर कितने प्रकार के बोला गया है लक्षण? इलेक्शन टेस्ट रिमूल और प्रयोजन मूल, तो टोटल है तो 80। हाँ, 80 प्रकार का है। तो पहला कितने विभाजन किया गया है? रूढ़ी मूला और प्रयोजन मूला है। हाँ, रूढ़ि रूढ़ी मूल मूला और लक्षणा का, प्रयोजन मूल। हाँ, रूढ़ी मूला लक्षणा का उदाहरण क्या है?
कर्मणि कुशलः कर्मणि कुशलः नहीं है। कर्मणि कुशल में क्या विषय आलोचना किया गया, इसका अर्थ क्या है कर्मणि कुशल का? कर्मणि इसमें कुशल किसान जो कर्म करता है उसके कुशल के कुशल का पद का प्रयोग मेरा भजन में निपुण इसलिए किया गया है। क्या बोल रहे हैं आप? रूढ़ी मूला में कलिंग साहसिक यह उदाहरण है। कर्मणि कुशल इसमें दिया गया है, मुख्यार्थ किसे माना जाए? रूढ़ी मूल या व्युत्पत्तिगत जो अर्थ है उसको लें। व्युत्पत्तिगत अर्थ को मुख्यार्थ माने तो क्या होगा? तो कर्मणि कुशल वहां बोल रहे हैं कुशल लाती थी कुशल, तो ऐसा मानने पर, लेकिन कुशल शब्द का आजकल की दुनिया में क्या व्यवहार? दक्ष, प्रवीण, मास्टर जो है, उसी अर्थ में है। लेकिन कुशल का व्युत्पत्तिगत है, कुशाल लाती थी, कुश घास जो काट के लाता है, कुशग्राही, उसे ही कुशल कहते हैं। और इसी व्युत्पत्तिगत व्युत्पत्ति से मिलने वाला अर्थ को ही हम मुख्यार्थ मान लें तो क्या होगा? तो हमारा जो गमेर गौ ये सूत्र है, तो गौ सेते इस वाक्य तो संभव ही नहीं होगा, असंभव हो जाएगा। क्यों? कि गौ जो शब्द है वो गम धातु से डौ प्रत्यय होने पर ही होता है। और गम शब्द का अर्थ क्या है? गम धातु का अर्थ गमन नामक क्रिया है, जाना, चलना। ठीक है, तो चलते गौ सेते, अब चलता हुआ कौन सोएगा? नहीं सो पाएगा ना, गौ सेते यह वाक्य ही नहीं होगा। तो यहाँ व्युत्पत्तिगत अर्थ को लेकर हम कभी भी आ, मुख्यार्थ का विवेचन हर समय नहीं कर पाएंगे, हमें रूढ़िगत अर्थ भी लेना है। यही बात बोला जा रहा है। रूढ़ी मूला लक्षणा का उदाहरण कलिंग साहित्य का दिया गया है। क्यों? कलिंग शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? राज्य विशेष, स्थान विशेष है। साहसिक जो है वो दर्प विशेष है और चैतन्य गुण है। और कलिंग जो है अचेतन है, अचेतन में चैतन्य गुण का समावेश नहीं हो पाने के कारण यहाँ जो अर्थ प्रतीति नहीं हो पा रहा है, अर्थ बाधित हो रहा है मुख्य अर्थ। तो क्या कर रहे हैं? कलिंग शब्द का अर्थ राज्य विशेष जो है उस अर्थ को पूरी तरह त्याग कर दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कलिंग में रहने वाला आदमी, कलिंग में रहने वाले लोग, साहसिक, अब अर्थ आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो कलिंग शब्द से रूढ़ी मूला में ले ले, क्या है? कलिंग में रहने वाले लोग। फिर आ रहा है प्रयोजन मूला लक्षणा का उदाहरण क्या दिया गया है? देखिए आप लोग इस मतलब डिस्कशन में भाग नहीं ले रहे हैं, डिस्कशन में ज्यादा आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन में भाग लीजिए। जब प्रश्न पूछा जा रहा है उत्तर दीजिए। एक भले ही आप स्टडी मटेरियल देख कर बोलिए, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, नोट्स देख कर बोलिए। इतना प्रांजल और क्लियर में और कहीं नहीं पढ़ाया जा सकता। इतना पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं, ये कहा कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग? इतना पढ़ाई करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। प्रयोजनवादी का उदाहरण कृता भविष्यन्ति नहीं है, गंगायाम घुस है। आप देखिए, नोट को देखिए, उपादान आप एक लक्षण बार का चेक। उदाहरण दिया गया है। प्रयोजनवादी का उपादान लक्षण प्रयोजन का उदाहरण हेलो, प्रयोजन मूला लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घुस है। प्रयोजन मूला का जो उपादान मूला है, उपादान लक्षणा है प्रयोजन मूला, वहां पर पूर्णतः प्रविशंति दिया गया। फिर आगे चल के तो उदाहरण सब बदलेगा। आप एक बार अपना गंगायाम स्टडी घोष मटेरियल देखिए। हाँ, प्रयोजन मूला लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घूसा।
पर जो उपादान लक्षण है प्रयोजनवती उपादान लक्षण का उदाहरण वो भी कुंठा प्रविशांति शांति भी दिया गया वो है। अलग है, वो फिर आगे जाकर फिर आप परसों क्लास में थे कि नहीं थे? वो थी पर काम कि पड़ा था, कहाँ काम कहाँ पड़ा थी आप? तो चला गया था। ऐसा करने पर कैसे होगा? नहीं आप हमारे क्लास यहाँ में भी बारिश नहीं हो रह रहा रहे है ना, हैं। इसलिए बारिश तो होती रहेगी, आप क्लास में सुनेंगे नहीं और डाउट से बोलेंगे तो कहाँ से तो कभी भी कोई जितना भी समझाने पर भी तो डाउट रह जाएगी ना। आप पूरे क्लास में थोड़ा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब नहीं सुन रहे हैं तो आप अपना स्टडी मटेरियल थोड़ा पढ़ के आइए, उसमें तो पागल से लिखा हुआ है। वहाँ मैं जैसा डायग्राम बना के दिया हूँ, उसी का नोट्स पॉइंट के हिसाब से वहाँ लिखा गया है। उस पॉइंट को हम्म। आप पढ़ के आइए। जी सर, जी एक सर। बार पॉइंट्स को पढ़ के आइए, पूछिए। समझने और समझाने में आनंद आएगा। प्रश्न पूछने पर आप भी घबरा रहे हैं कि प्रश्न कहाँ से पूछूं और क्या करूं। तो मैं चाहता हूं आप लोग कल की क्लास में थोड़ा ओवरलुक करके आइए। कुछ आज तक जितना पढ़ाया गया है उसके ऊपर और एक बार हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? उसके बाद आगे पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं बोल पाएंगे आगे, तो हम क्या पढ़ाएंगे आगे और क्या समझेंगे? आप लोग पढ़ के आइएगा तब जाकर ये डिस्कशन और काउंसलिंग क्लास है। आप पूछेंगे, मैं बताऊंगा। और पूरी क्लास की तरह जैसे रेगुलर क्लासेस चलते हैं उसी तरह ही पढ़ाऊंगा, और आप अपने रास्ते में अपने रास्ता। ये तो सही नहीं है। आप लोग व्यस्त है, ठीक है, लेकिन जिस समय आप दे रहे हैं यहाँ पर उस समय का सदुपयोग तो करिए। कम से कम 4 से 6 बजे तक जो जब हम पढ़ते हैं उसी समय आप अपने स्टडी मटेरियल लेकर बैठिए। तो कल की जो क्लास होगी उसमें देखेंगे कि आप लोग कितने अध्ययन करके आए हैं इस ऊपर और एक बार हमने चर्चा करना है, और उसके बाद हम आगे सीधा आकर कहानी सुन के जाना से नहीं होगा। इस तरह पढ़ाई करने पर नहीं बनता है, ठीक है? आप लोग सहयोग कीजिए, और किसी का कुछ पूछना है तो आज पूछ सकते हैं। आज जो पढ़ाया गया है नाटक के अंग के ऊपर, उस विषय पर आप पूछिए।
ठीक है, नेक्स्ट कल की क्लास में देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा प्रकरण है उसी विषय वस्तु को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय जगन्नाथ।